I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note. Sahib says, his eyes lighting up. साहिब अपनी चमकदार आंखों से कहता है, मतलब जोश से कहता है, साहिब जोश से कहता है कि कभी कभी मुझे 1 रुपया भी मिल जाता है इस गार्बेज के ढेर से, या और कभी कभी तो मेरे को 10 का भी मिल जाता है, 10 का नोट भी मिल जाता है। 1 रुपया का सिक्का मिल जाता है और 10 का नोट भी मिल जाता है। साहिब सेज इज आइस लाइटिंग अप। I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note. I sometimes find a rupee, even a 10 rupee notes. ये ज़्यादा रुपये मिल जाते हैं, 1 से 10 तक ही मिलते हैं, मैं शायद 1 से 10 ही तक मिलते हैं, तभी कहता 10 रुपी नोट। आई समटाइम्स फाइंड रुपी, इवन अ 10 रुपी नोट सेस साहिब सेस हिज आइज लाइटिंग up. When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more. जब तुम्हें सिल्वर कॉइन का मतलब यहाँ कोई पैसे मिल जाते हैं। व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज के ढेर से तुमको अगर पैसे मिल जाते, यू डोंट स्टॉप स्क्राउंगिंग, फिर तो तुम रुकोगे ही नहीं भैया ढूंढना उसमें से, कचड़े में से। फॉर देयर इज़ अ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि तुमको आशा रही कि और भी पैसे मिल सकते हैं। I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note. Sahib says his eyes lighting up. When you can find a silver note in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more. For there is hope for finding more. It seems that for there is hope of finding more. Hope of finding more. It seems that for children, garbage has different meaning from what it means to their parents. ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए गार्बेज का मतलब अलग है और पेरेंट्स का मतलब कुछ और अलग है। It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to parents. It seems that for children, garbage has a meaning different. It seems that garbage has a meaning different from what it means to their parents. For children, garbage has a different meaning from what it means to their parents. For the children, it is wrapped in bundle. For the elders, it is a means of survival. बच्चों के लिए ये मज़ेदार चीज़ है ढूंढना, और बड़ों के लिए इस जीने का जरिया है। फॉर चिल्ड्रन इट इज़ अ wrapped in bundle. For the children it is wrapped in bundle. खुशी में पैक। For children it is wrapped in bundle. For children it is wrapped in bundle. For the elder it is a means of survival. For the elders it is a means of survival. For the elders it is a means of survival. For the children it is wrapped in bundle. For the elder it is a means of survival. One winter morning, एक ठंडी सुबह, one winter morning, एक ठंडी सुबह, I see साहिब standing by the fence gate of the neighborhood club. मैंने देखा कि साहिब एक तार फेंसिंग वाला गेट था, उस पे स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट, उस पे खड़ा था, ऑफ द नेबरहुड क्लब, नेबरहुड का पड़ोसियों का क्लब था वो। वॉचिंग टू यंग मैन, दो जवान व्यक्तियों को देख रहा, ड्रेस्ड इन वाइट, प्लेइंग टेनिस, सफ़ेद ड्रेस पहने थे वो और टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम ही हम्स मतलब गुनगुनाहट, फुसफुसाते हुए वो बोला कि आई लाइक, मेरे को ये गेम अच्छा लगता है, ये खेल अच्छा लगता है, फुसफुसाते हुए। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और वो उसको देख रहा था फेंसिंग के पीछे खड़े होके।
आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड, जब कोई नहीं रहता मैं चला जाता हूँ उसमें। ही एडमिट्स दी गेट कीपर लेट्स मी यूज़ दी सिंग, और वो मुझे गेट कीपर अंदर जाने देता है और मुझे झूला झुलाता है। For children it is wrapped in wonder, and for the children, for the elder it means of survive. It is a means of survive. One winter morning I saw Sahib standing by the fence gate of neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis. I like the game, he hums, content to watch it standing behind the fence. I like the game. He hums, content to watch it standing behind the fence. Content to watch it standing behind the fence. Content to watch it Content to watch it standing behind the fence. Watch it standing behind the fence. I go inside when no one is around. He admits the gatekeeper lets me use the swing. 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 The gatekeepers let me use the swing. The gatekeepers let me use the swing. The gatekeepers let me use the swing. The gatekeeper lets me use the swing. The gatekeeper lets me use the swing. Sahib too is wearing tennis shoes. Sahib too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. साहब भी जूते पहने, टेनिस वाले शूज़ पहने थे. साहिब टू इज़ बियरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स. वो अलग लग रहे थे उसकी भद्दी शर्ट पे और शॉर्ट चड्डी पे. साहिब टू इज़ बियरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज, अजीब से लग रहे थे, ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शूज़ शॉर्ट्स. Sahib too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. Someone gave them to me, he says in the manner of explanation. उसने मुझसे कहा, एक्सप्लेन करते हुए, मैंने जब उससे पूछा कि ये जूते कहाँ से आए तो उसने कहा कि किसी ने मेरे को ये दिए हैं. Someone gave them to me, he says in the manner of explanation. The fact that they are discarded shoes of rich boy. लेकिन जो फैक्ट था कि ये एक अमीर बच्चा था जिसने ये शूज़ को अच्छे नहीं लगे उस अमीर लड़के ने इन जूतों को फेंक दिया. Who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them. उसने इसलिए फेंक दिए इनको क्योंकि इनमें एक होल था इसलिए, और ये शायद साहिब ने उठा लिया. Does not bother him. The fact that are discarded shoes of a rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him. For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true. Who has walked barefoot? एक जो बिना जूते के चलता है, और इवन शूज़ विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू. लेकिन भैया इसने शूज़ पहने हैं, ये भले ही वो उसमें छेदा हो, ये कम से कम सही हो गया ड्रीम. मैंने अनी जगह सोच रहे कि कोई रैक पे कर जूते पहनने होगा, लेकिन इसने पहन लिए. भले ही उसमें छेदा हो, उनका सपना सच हो गया. बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच. लेकिन जो गेम वो देख रहा था वो उसकी पहुंच के बाहर था, वो कभी खेल ही नहीं सकता था. दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू दी मिल्क बूथ.
अब एक सुबह सुबह साहेब अपने रास्ते जा रहा था दूध की दुकान पर। इन हिज हैंड अ स्टील इन इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कैनिस्टर, और उसके हाथ में एक चाय की वो कैन रखी थी। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस। एक दुकान थी उधर हाथ बताकर उसने कहा कि मैं इस चाय की दुकान पे काम करने लगा हूँ। आई वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन दी रोड, जो रोड के किनारे है। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, और मुझे 800 रुपये मिलते हैं पूरे खाना पीना सहित, ऑल माई मील्स। डज़ ही लाइक दी जॉब, आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा कि तुमको तुम्हारी जॉब अच्छी लगती है। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट दी केयर पे लुक, मैंने देखा उसका चेहरा, उसको उदासी भरा चेहरा था। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, और जो स्टील कैन थी वो प्लास्टिक जो बैग रहता था उसके पास उससे भारी थी, और जो प्लास्टिक बैग था वो थोड़ा हल्का था जिससे वो आसानी से अपने कंधे पे टांग सकता था। द बैग वॉज हिज, लेकिन बैग था उसका, जो बैग था वो खुद का था, लेकिन अब जो कैन है उसके पास, द कैन स्टार बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, लेकिन जो कैन है वो उस आदमी की है जो टी शॉप का मालिक है। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब साहिब खुद का मास्टर नहीं रहा, कोई दूसरा उसका मास्टर बन गया, और दूसरा मास्टर कौन? चाय वाला मालिक। समझ गए कुछ?